Peace be with you, my dear students. I hope you are doing well and you are safe and healthy and doing something constructive and innovative in these days of lockdown and pandemic. So, what we have started up till now in the previous series of lectures, you are well aware of that. So, let's have a quick review of what we have started already. We have started related to the basic concepts of acids, basic concepts of bases, okay, their physical and chemical properties we have studied. And then next topic was pH scale, how to calculate the pH scale, what was the pH scale, we studied that in detail as well. Negative log का concept क्या था वो हमने देखा, और 14 से लेकर 0 तक का जो range scale होता है we have studied in detail. Not only pH scale helps us to measure the pH of any substance, not only pH scale assists or guides us related to the knowing of pH of any substance, but there are other substances as well that help us to understand the pH, that help us to know, that helps us to enlighten the pH of any substance. Those substances are called indicators. उनको हम क्या कहते हैं? Indicators. pH scale के अलावा भी जो हैं कुछ substances होती हैं जिनसे हमें एक substance की, एक solution की, एक अननोन कंपाउंड की जो है pH पता लग जाती है, and that substance, that compound, that idea is called indicators. उनको हम क्या कहते हैं? Indicators. वो indicate करते हैं कि या तो ये acidic है, या तो ये neutral है, या तो ये basic है. ऐसे substances जो कि indicate करें हमें about the acidity, basicity या neutral substance के बारे में indicate करें, ऐसे substance को हम कहते हैं indicators. क्या कहते हैं? Indicators. अब इंडिकेटर्स के बारे में आज हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं. लेट्स ओपन अप आवर प्लेटफॉर्म फॉर दिस डिस्कशन कि व्हाट इज इंडिकेटर. तो इंडिकेटर्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. अब पहली बात जो हमने सीखी इंडिकेटर की प्रॉपर्टी, व्हाट दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं आपको बड़ा अच्छी तरह पता है. इट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच से हमें इसका बैक इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th we come to know in detail what are organic compounds. Organic compounds are compounds that contains compounds of hydrogen and carbon and their derivatives. ठीक है, तो ये है organic compounds की definition. तो indicators क्या होंगे? Indicators are organic compounds. They have different colors in acidic and alkaline solutions. अब indicators जो होते हैं इनके जो रंग होते हैं वो acidic और basic या alkaline solution के अंदर मुख्तलिफ होते हैं. ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी. तीसरी प्रॉपर्टी, लिटमस इज अ कॉमन इंडिकेटर. हम देखते हैं कि लिटमस पेपर को जो हम एसिड के अंदर रखते हैं तो उसका रंग फर्क हो जाता है, बेस के अंदर पुट इन करते हैं तो उसका कलर फर्क हो जाता है. दिस मींस लिटमस इज अ सॉल्यूशन, सॉरी, इट्स अ कॉमन इंडिकेटर. ओके, और एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ये रेड हो जाता है. क्या हो जाता है? अब ये कैसे याद रखा जाए कि एसिड में ये रेड हो जाता है? तो इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. एसिड के एंड पे डी आता है तो रेड के एंड पे भी क्या आता है? डी आता है. तो ये आपने भूलना नहीं है कि एसिड जो है वो रेड कर देता है सॉल्यूशन को, लिटमस जो है वो रेड कर देता है एसिडिक सॉल्यूशन में अपने आप को. ठीक है, तो एसिड के एंड पे भी डी है, रेड के एंड के ऊपर भी डी है, और एल्कलाइन या बेसिक सॉल्यूशन में लिटमस जो है वो ब्लू कर देता है. ये हम शुरू में भी प्रॉपर्टीज पढ़ के आ चुके हैं. ईच इंडिकेटर हैज स्पेसिफिक कलर इन एसिडिक मीडियम which changes at a specific pH to another color in basic medium. ये तो obvious है कि हर जो है इंडिकेटर एक है. ठीक है, ये याद रखने से ताल्लुक है आपका. इंडिकेटर इज वन, but when you put it in the acidic solution its color will be different, and when you put it in the basic solution its color will be different. So this means indicator is one, but it is acting according to the acidity or the basicity of the compound. ठीक है, तो उसका कलर मुख्तलिफ हो जाता है. जैसे लिटमस है, लिटमस एक इंडिकेटर है. एसिड में रेड है वो एक ही, लेकिन एसिड के अंदर रेड है, बेस के अंदर वो ब्लू है. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल बड़ी अच्छी, फेनोफ्थलीन. इसको अक्सर लोग जो है, ये जरा इसको तोड़ के नहीं बोलना, इसको केमिस्ट्री में फेनोफ्थलीन बोला जाता है. अक्सर लोग इसको फिनॉल फथलीन, फिनॉल फथैलीन इस तरह भी बोलते हैं, लेकिन ये फेनोफ्थलीन है. ठीक है, फेनोफ्थलीन एल साइलेंट है. तो फेनोफ्थलीन जो है एक ये इंडिकेटर है. क्या है बेटे? इंडिकेटर. और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में भी देखा कि व्हाट इज फेनोफ्थलीन. फेनोफ्थलीन इज एन इंडिकेटर और एज अ जनरल इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अच्छा जी, अब ये करता क्या है?
इट इज कलरलेस इन स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन। ये क्या है, एसिडिक सोल्यूशन में तो ये कलरलेस है, लेकिन जब बेस में डाल देते हैं या बेस में इसको ऐड करते हैं तो व्हाट इट इज फॉर्म, इट फॉर्म्स अ स्ट्रांगली एल्कलाइन सोल्यूशन में ये रेड कलर बना देता है। कौन सा कलर बना देता है, रेड कलर। यानी कि ये देखें जरा लास्ट डायग्राम की तरफ, लास्ट पॉइंट की तरफ, फेनोफ्थलीन है 0 से लेकर 9 तक ये कलरलेस है, लेकिन जैसे जैसे आप बेसिसिटी की इंक्रीज की तरफ जाते हैं, इनहैंस्ड बेसिसिटी की तरफ यू मूव, सो it changes its color and it becomes from colorless to red. This means that this is an indicator that is colorless in acid but red in base or alkaline solution. This means, जो कि मैं गुजारिश कर चुका हूं पहले, this means phenolphthalein is colorless in a solution with pH less than 9. ऐसा solution जिसकी pH less than 9 होगी, phenolphthalein उसमें colorless होगा, लेकिन ऐसा solution जिसमें pH 9 से बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है, फेनोफ्थलीन जो है वो रेड कलर शो करता है। ठीक है, इसी तरह मिथाइल ऑरेंज जो है वो 4 तक जो है वो रेड कलर शो करता है, पीएच 4 तक इट शोज रेड कलर, बट 4 से as soon as you jump from 4 to 5 and 6 and onwards till 14 the color changes from red to yellow। ठीक है, कलर जो है वो रेड से जो है वो येलो हो जाता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझने से ताल्लुक रखता है, ये है इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये फ्यू इंडिकेटर्स है, मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस है और फेनोफ्थलीन। इसके अलावा भी मिथाइल रेड होता है और काफी सारे इंडिकेटर्स, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर जो है दे आर जस्ट 3, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस एंड फेनोफ्थलीन। फेनोल्फथलीन नहीं, फेनोफ्थलीन। ओके, फिर मेजरिंग पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। इसके अलावा 2 डिफरेंट सॉल्यूशन को मेजर करने की, सॉल्यूशन के पीएच को मेजर करने के लिए 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। आइए देखते हैं कि व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। सम इंडिकेटर्स आर यूज्ड एज मिक्सचर्स। हाँ, अब कुछ इंडिकेटर्स को एज अ मिक्सचर यूज किया जाता है। हो सकता है मिथाइल ऑरेंज और लिटमस को या उसने फेनोफ्थलीन को मिक्स करके एक नया पीएच इंडिकेटर बना दिया हो। द मिक्सचर इंडिकेटर गिव डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट पीएच वैल्यूज। ऑब्वियस होगा ये तो कि जब डिफरेंट आपने मिक्सचर्स को ज्वाइन कर लिया है, डिफरेंट इंडिकेटर्स को आपने ज्वाइन कर लिया है एंड दे हैव फॉर्म्ड अ मिक्सचर, सो व्हाट इज हैपनिंग, सो दे विल बी गिविंग ऑफ कलर एट डिफरेंट पीएच। ठीक है, हर एक पीएच के ऊपर मुख्तलिफ कलर आएगा क्योंकि जो इंडिकेटर्स थे हमने मिक्स किए, और हर इंडिकेटर का जो कलर है वो फर्क होगा, वो आइडेंटिटी डिफरेंट होगी। ऑल्दो दे आर अ मिक्सचर, बट इन एसिड उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट होगी, इन बेस उनकी आइडेंटिटी डिफरेंट होगी। हेंस इट इज यूज्ड टू मेजर द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन। सच अ मिक्सचर इंडिकेटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स। अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स is called what, is called a universal indicator। उसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, इंडिकेटर्स इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो फेनोफ्थलीन है, लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर इन सबको मैं मिक्स कर दूं तो इनको मैं क्या कहूंगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या कहूंगा बेटे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड बाय डिपिंग अ पीस ऑफ यूनिवर्सल। ये बाजार से आसानी से मिल जाते हैं, लिटमस पेपर भी मिल जाता है आपको, और यूनिवर्सल इंडिकेटर का पेपर भी जो है मिल जाता है। ये फिगर 10.3 में बड़ा क्लियरली आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द कलर्स ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। ओके, तो आप इसको डिप करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर और आपका जो है वो कलर जो है, द पीएच इज देन फाउंड बाय कंपेयरिंग द कलर ऑब्टेन्ड विद द कलर चार्ट एज शोन इज इन फिगर 10.3। कलर चार्ट मिलता है आपको, आप उसमें डिप करते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर और आप उसके साथ मैच कर लेते हैं। ठीक है, उसके साथ आप क्या कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं कि इसका पीएच क्या होगा। लेकिन इससे भी एक बेहतर, मोर ऑथेंटिक, मोर एफिशिएंट, मोर इफेक्टिव एक और पीएच को मेजर करने का एक अंदाज है, एक तरीकाकार है, वो है पीएच मीटर। ये याद रखें, पीएच मीटर जो है, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी मेजर्ड विद अ पीएच मीटर। पीएच मीटर जो है वो एक बहुत एक इफेक्टिव वे है, इफेक्टिव तरीकाकार है टू मेजर द पीएच ऑफ एनी सॉल्यूशन, एनी अननोन सॉल्यूशन। अब इसमें होता क्या, इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू अ मीटर। एक इलेक्ट्रोड होता है, ये जैसे इलेक्ट्रोड आप स्क्रीन की तरफ देख सकते हैं जो बीकर के अंदर है डिप्ड, ये कनेक्टेड है एक उसके साथ, मीटर के साथ, जो कि या तो स्केल उसका डिजिटल हो सकता है, नंबर शो करेगा, या उसका स्केल जो है सिंपल स्केल हो सकता है। ठीक है,
वो एक जैसे पीएच मीटर होता है या आपका वोल्ट मीटर होता है, वो वेरिएशन शो करता है। वो सिंपल स्केल भी हो सकता है, एनालॉग स्केल उसको कहते हैं, एनालॉग स्केल भी हो सकता है या डिजिटल स्केल भी हो सकता है। जब आप अपने उस इलेक्ट्रोड को, ये देखिए ये फॉर इंस्टेंस इलेक्ट्रोड है, इसको इसके साथ ये एक मीटर के साथ कनेक्टेड होता है। इस इलेक्ट्रोड को जब मैं डिप करता हूं किसी भी चीज के अंदर, अननोन सब्सटेंस के अंदर, तो उसके अंदर जो मीटर साथ लगा हुआ उसके अंदर वेरिएशन आना शुरू हो जाती है, तो उससे हमें जो है पीएच पता चल जाता है। दिस मीन्स, याद रखें बेटा, जहां भी इंसानों का अमल दखल रहा है, जैसे कि ये कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर में आपको खुद देखना पड़ता है ना, कि यू हैव टू सी योरसेल्फ कि जी ये अच्छा ये पीएच मीटर है, ये जो है मेरे पास वैल्यू आई है ये जो डिप करने के बाद पीएच स्केल से, तो मैं इसको जो है कंपेयर कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, हो सकता है मैं जो हूँ फर्क कंपैरिजन करूँ, कोई और बच्चा हो वो फर्क कंपैरिजन करे, कोई और स्टूडेंट जो है फर्क कंपैरिजन करें, ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द व्यूइंग कैपेसिटी। तो एरर तो आ गया, जहां भी इंसानों ने देखे, जहां भी इंसानों का अमल दखल रहा है वहां पे एरर्स रहे हैं। तो pH meter is way more authentic and efficient and effective as compared to the universal indicator, क्योंकि उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल डिप करना है pH मीटर के इलेक्ट्रोड को, और आपने जस्ट उसमें से pH मीटर को रिकॉर्डिंग आ जाएगी डिजिटली। ठीक है, ओके। सो ये ज्यादा जो है कन्वीनियंट है, एफिशिएंट है, इफेक्टिव है। कभी कभार कंपैरिजन आ जाता है, व्हाई pH मीटर इज मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एज कंपेयर टू द यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ये एग्जांपल्स हैं, ये आपको पता है कि पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेगेटिव लॉग लेके कॉन्सेंट्रेशन का आपका आंसर आ जाता है। सॉल्ट्स की बात करते हैं बेटे, लेट्स मूव टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी टेक्निकल जो है लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। सॉल्ट्स की जानिब चलते हैं। इससे पहले सॉल्ट्स के तरफ जाने से पहले कोई सवाल है तो मुझसे पूछें, शाबाश, वरना थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड, जल्दी से, या चैट बॉक्स में यू कैन पुट अप योर क्वेश्चंस। शाबाश शाबाश, ओके ओके परफेक्ट जी। बाकी बच्चे जी, गुड, शाबाश, ओके। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में बड़ा मशहूर कॉमन सॉल्ट्स हैं जी, मैं एक दफा चैट बॉक्स देख लो अगर किसी का गॉट इट, शाबाश, ओके। सो जो है क्या बात कर रहे थे, सॉल्ट्स के बारे में बात कर रहे थे कि सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। पहली प्रॉपर्टी सॉल्ट की जो है, दे आर आयनिक कंपाउंड्स। और आयनिक कंपाउंड्स हम लोग बॉन्डिंग के चैप्टर में सीख के आए हुए, छठे चैप्टर के अंदर, सॉरी फोर्थ चैप्टर के अंदर, बॉन्डिंग के चैप्टर के अंदर, कि आयनिक बॉन्डिंग किसके बीच में होती है। आयनिक बॉन्डिंग होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में, यानी कि ग्रुप 1 और 2 के मेटल्स और एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट के एलिमेंट्स के बीच में जो भी बॉन्डिंग होगी, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्डिंग। और आयनिक बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आर कंप्लीटली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। ये बातें आपको सारी पता हैं। जिसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये आइंस बना देते हैं, क्या बना देते हैं, आइंस बना देते हैं, ओके। और मेटल्स की आपको पता है टेंडेंसी, यू स्टार्टेड इन 8th चैप्टर ऑफ क्लास 9th, कि मेटल्स की एक एबिलिटी होती है, वो इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है, बड़े खुददार होते हैं वो, उनकी एबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स देने की, वो सखी होते हैं, वो देते हैं, ठीक है। दे हैव द एबिलिटी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, सो then who will be accepting those electrons? The non-metals will be accepting those electrons. और जो इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं वो पॉजिटिव आयंस बना देते हैं, उनको हम कैटाइन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो नेगेटिव आयन बना देते हैं, उनको हम एनाइन कहते हैं, ठीक है। So let's start. Salts are ionic compounds generally formed by the neutralization of an acid with a base. ये हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ के आए हैं कि एसिड का रिएक्शन जब बेस के साथ होता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, देखिए पहले भी मैंने आपको पढ़ाया है कि एसिड और बेस, एसिड और वाटर बनेगा, ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, सॉरी, या बेस का एसिड के साथ रिएक्शन हो तो भी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ओवरऑल इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, व्हाट वी कॉल इट अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हाउ सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड? सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द पॉजिटिव ions and negative ions. A cation is a metallic ion derived from a base, therefore it is called a basic radical, ठीक है। While an ion is derived from an acid, therefore it is called a, therefore what it is called? It is called a acid radical, okay. A salt gets its name from the names of the metal and the acid is shown in table 10.4. अब सोडियम का जब भी रिएक्शन
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होता है, मेटल और एसिड का जब रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। पोटेशियम और नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं, ये मैंने आपको सिखाई हुई इक्वेशन बनाना, पहले का पहले और आखिरी का आखिरी। अभी इसको देखेंगे कि सॉल्ट फॉर्मेशन कैसे होती है। 4 मुख्तलिफ तरीके हैं, 5 मुख्तलिफ गालिबन तरीके हैं सॉल्ट बनाने के, तो वो भी हम देखते हैं कि सॉल्ट कैसे बनाया जाता है। अब मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज की जब आप बात करते हैं तो बड़ी सिंपल सी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो कि कैरेक्टराइज करती हैं। अब कैरेक्टराइज का क्या मतलब, जो कि इसको एक आइडेंटिटी देती है, जो कि इसकी आइडेंटिटी को मुख्तलिफ बनाती है दूसरी आइडेंटिटी से। सिंपल प्रॉपर्टीज नहीं है ये, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो लफ्जों के भी अंदर उसके मायने छुपे होते हैं, उसको समझने से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। समझना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक जो कि उसको कैरेक्टराइज करते हैं, जो कि उसको आइडेंटिटी देते हैं, जो कि उसको शनाख्त देते हैं, ठीक है। एवरी पर्सन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दैट मेक्स हिम डिफरेंशिएट फ्रॉम द अदर पर्सन। सिमिलरली सॉल्ट्स आल्सो हैव अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। अब क्या है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स फाउंड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। सबसे बड़ी मिसाल सोडियम क्लोराइड की है, उसका जो क्रिस्टल लैटिस बनता है सॉल्ट्स की, हमेशा जो है आयनिक कंपाउंड्स जब भी होंगे, आयनिक कंपाउंड्स हमेशा क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाते हैं, और सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, इसलिए चूंकि सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड देयरफॉर दे फॉर्म क्रिस्टलाइन, दे आर इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑब्वियसली इनके अंदर आइंस होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस आपस में अट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव जब अट्रैक्ट करते हैं तो उसकी बॉन्डिंग जो होती है बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, उसकी जो अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और जब अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाती है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इट गेट्स स्ट्रांग। थर्ड पॉइंट, most of the salts contain water of crystallization which is responsible for the shape of crystal। अब water of crystallization क्या होता है, ये ताल्लुक जो है ये बड़ा समझने से ताल्लुक रखता है, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। जब भी सॉल्ट की क्रिस्टल्स बनते हैं, अब जरा समझिएगा, सॉल्ट्स के जब क्रिस्टल्स बनते हैं, ऑब्वियसली सॉल्ट के क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, तो किसी ना किसी तरह जब आप मिक्स करेंगे दो सब्सटेंसेस को तो उसके क्रिस्टल्स तो बनेंगे, लेकिन उसमें कुछ हद तक उसके जो क्रिस्टल लैटिस है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें पानी के भी चंद एक मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, या तो उसको सराउंड कर लेते हैं या तो वो उस क्रिस्टल लैटिस का हिस्सा बन जाते हैं, और जब उस क्रिस्टल लैटिस का हिस्सा बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा जी, और जब हम उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं तो उस पानी की वजह से उस क्रिस्टल की शेप बनती है, उस पानी की वजह से उस क्रिस्टल की शेप बनती है। जैसे कि ये कॉपर सल्फेट 5H2, इसका मतलब ये हुआ कि कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल तो है लेकिन इसके साथ 5 पानी के मॉलिक्यूल्स भी लगे हुए थे, और अगर 5 पानी के मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच्ड हैं, दिस मींस दैट दीज 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर डिटरमिनिंग द फेट, आर डिटरमिनिंग द स्ट्रक्चर, आर डिटरमिनिंग द डेस्टिनी ऑफ कॉपर सल्फेट, और ये पानी के मॉलिक्यूल्स जो है कॉपर सल्फेट को शेप देते हैं। ओके, यहां तक कॉन्सेप्ट समझ आता है? शाबाश, जल्दी से थम्स अप इफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। शाबाश शाबाश शाबाश, जी 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 शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी आगे चलते हैं। सॉल्ट्स, पहली हमने बात पढ़ी, सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, और अगर ये आयनिक कंपाउंड्स है तो ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर आयनिक कंपाउंड्स है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बड़ा हाई होगा, ये भी हमें समझ आ गई। तीसरा कि इनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, और वही वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है इनके क्रिस्टल को शेप देता है। क्या करता है, इनके क्रिस्टल को शेप देता है, ये बात भी हमें क्लियर होती है। चौथा पॉइंट, सॉल्ट्स आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। ये क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड्स। ये तो रिजल्ट था एसिड बेस के रिएक्शन का, और एसिड बेस के रिएक्शन को हमने कहा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और अगर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का तो सॉल्ट्स तो खुद भी क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। ऑल्दो they do not compose of equal number of positive and negative ions but have equal number of positive and negative charges। चार्ज फर्क होता है, आयन फर्क होती है, ठीक है। ओके, फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल ऐसे ही है, क्लास 9 पिंक की एग्जांपल लें, उसमें बॉयज कितने हैं, इक्वल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स तो नहीं है, लेकिन उसको 9 पिंक कहा जाता है, गर्ल सेक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट से याद रखने की का आपका ताल्लुक होना चाहिए।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। पहली प्रॉपर्टी क्या देखी हमने, जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर। दूसरी प्रॉपर्टी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा इनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं जो कि उस क्रिस्टल का साइज, उस क्रिस्टल की शेप को डिटरमिन करता है। ये तीन प्रॉपर्टीज हमने देखी। और चौथा प्रॉपर्टी हमने देखी फोर्थ के दे आर न्यूट्रल कंपाउंड्स। ये क्या होते हैं, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। अब सवाल ये आता है कि इनको प्रिपेयर कैसे किया जाए भाई, इनको प्रिपेयर, इनकी प्रेपरेशन कैसे की जाए। हम थोड़ी सी प्रेपरेशन आज पढ़ेंगे, बाकी हम इंशाल्लाह कल इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वी विल लुक इनटू दिस इन डिटेल, इन डेप्थ। प्रेपरेशन कैसे होती है। अब सॉल्ट्स जो हैं, इससे पहले कि हम प्रेपरेशन की तरफ जाएं, लेट्स टॉक अबाउट टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स जो हैं दो किस्म के होते हैं, एक वो जो पानी में सॉल्युबल होता है, एक वो जो पानी में सॉल्युबल नहीं होता। सो दिस गिव्स राइज टू टू टाइप्स ऑफ सॉल्ट, दैट इज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। अब सॉल्युबल को प्रिपेयर करने का अंदाज भी मुख्तलिफ है, टेक्निक भी मुख्तलिफ है, तरीका भी मुख्तलिफ है, और सॉल्युबल सॉल्ट्स को बनाने का तरीकाकार भी मुख्तलिफ है। इनसॉल्युबल को बनाने का भी तरीका मुख्तलिफ है और सॉल्युबल को भी बनाने का तरीका मुख्तलिफ है। लेकिन इससे पहले कि हम इनकी प्रेपरेशन की जाने बढ़ें, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सॉल्युबल सॉल्ट क्या है और इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको थोड़ा सा बता चुका हूं कि जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है दैट इज सॉल्युबल सॉल्ट, जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता दैट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो पहले हम देखते हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स को। 5 मेथड्स हैं टोटल बनाने के। देयर आर 5 जनरल मेथड्स फॉर द प्रेपरेशन ऑफ सॉल्ट्स, जिसमें से 4 मेथड से हम सॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे और एक मेथड से जो है हम इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाएंगे। तो आइए हम देखते हैं सॉल्युबल सॉल्ट को बनाने का तरीका। 4 तरीके हैं, टोटल 5 हैं, जिसमें से एक से इनसॉल्युबल बनाना सीखेंगे, 4 से सॉल्युबल बनाना सीखेंगे। जरा देखिएगा। पहला पॉइंट सॉल्युबल सॉल्ट्स को बनाने का पहला तरीका, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल। इसको डीडीएम कहते हैं या इसको डीडी मेथड भी कहा जाता है। डीडी मेथड इसको क्यों कहा जाता है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। अभी क्यों देखते हैं इसको डीडी मेथड क्यों कहा जाता है। एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ जब आप करवा देंगे तो आपके पास सॉल्युबल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ये एसिड के रिएक्शन में भी आप लोग पढ़ के आए हैं, तो ये तो प्रीटी मच सिंपल है। देखिएगा जरा, एसिड है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है बेटे, और साथ मेटल है मैग्नीशियम। अब हाइड्रोजन अलहदा कर दें और क्लोराइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 बन जाएगा, और जो पीछे हाइड्रोजन निकला था उसकी गैस बन जाएगी और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। इसको कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या होता है कि मैग्नीशियम ने डायरेक्टली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके क्लोराइड के साथ जो है बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, और ये सॉल्युबल है। पहला रिएक्शन है एसिड का रिएक्शन करवा दें मेटल के साथ, इसको डीडी मेथड कहा जाता है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये सॉल्युबल सॉल्ट है। दूसरा जो मेथड है बच्चों वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, एसिड का जब बेस के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। सॉल्ट एंड वाटर, मतलब वो तो सिंपल था, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दें तो सोडियम पहले का जो है सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ये देखिए सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, और पीछे जो बच जाएगा वो वाटर रह गया। तो ये भी सिंपल है, इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन मेथड। पहला मेथड हमने क्या पढ़ा था बेटे, पहला मेथड हमने क्या पढ़ा, पहला मेथड हमने पढ़ा डीडी मेथड, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है, हमने डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा। और दूसरा मेथड क्या पढ़ा हमने, दूसरा मेथड जो है हमने पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन मेथड, जिसमें एसिड और बेस का रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रही है। ये अब तक हम पढ़ रहे हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स का। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछें, शाबाश। मैं यहाँ पे जो है अपना लेक्चर वाइंड अप करूंगा, आप लोगों के लिए ओपन करूंगा जो है माइक प्लेटफॉर्म। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। शाबाश शाबाश शाबाश।